Hello, good afternoon, my dear student. Now we are going to start our math period. Yesterday we learned about the what we learned. Yesterday we learned about the numbers: one digit number, two digit number, three digit number, four digit, and five digit. Yesterday we started our second layer, and the name is the numbers beyond numbers up to the 10,000, means it is the five digit number. Okay, we learn about the tens. When 10 ones combine together, it form a 110. When 10 tens combine together, it form a 100. And when 100 tens combine together, it form a 1000. Right? We already seen about the smallest one digit up to the which is the greatest one digit number. So now today we are going to start our next point, and the name is the place value and face value. Okay, so place value and face value. But before going to start our main point, just tell me one thing. You are going in the class, and your friend sit on the first bench. Have you observed his face? Yes, because of his face you identify your friend name, right? Like this, numbers have the faces. Numbers have the different faces. One have a face, two have a face, three have a face, and according to their faces we understand the numbers, right? 3, you are seeing the number 3 and you are calling it as a 3, means like us, the numbers have also their face. And the place means its position. You are sitting in the first bench, second bench, third bench, fourth bench. Means that implies, that indicates your place. वो क्या बताती है? आपकी place बताती है. face क्या बताता है? आपका नाम. आप जो है वो दिखाता है face. और place क्या बताती है? आपकी position. वैसे ही नंबर का होता है. Each and every number have its place and have its face value. So place value means what? The place value means the place value of a digit. Digit means एक number. Place value means एक number. The place value of a digit in a number depends on its place in the number. Means किसी भी एक नंबर की अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? उसके पोजीशन के ऊपर. वो वंस पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है, 100 है या 1000 है. ये क्या हो गए? उसके प्लेसेस हो गए. मतलब 4 प्लेसेस है. कौन से? वंस इज प्लेस, राइट? वंस, टेंस, 100 एंड 1000. ये क्या हो गए? उसके प्लेसेस हो गए. कौन से प्लेसेस हो गए? वंस, टेंस, 100 एंड 1000, right? The numbers present at the ones position, it indicates its ones place. The numbers present at the tens position, it indicates its tens position, multiplied by 10. The number present at the 100 position, then whatever the number multiplied by the 100. The numbers at the 1000 position multiplied by the 1000. So place value means the position of any digit in the number. और द पोजिशन कौन से है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000. हाउ मेनी पोजिशंस? वंस, टेंस, 100 एंड 1000. दीज आर पोजिशंस. दीज आर क्या है? ये क्या है? पोजिशंस है, राइट? नाउ फेस वैल्यू. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, और प्लेस वैल्यू हमें कैसे मिलती है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट विद द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट्स ऑक्यूपाइज. जो भी डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस प्लेस से उसे मल्टीप्लाई करना है. लाइक द नंबर्स, आपको वंस पोजीशन की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे. टेंस पोजीशन की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 10 से मल्टीप्लाई. 100 पोजीशन की निकालनी है तो 100 से, और 1000 पोजीशन की निकालनी है तो 1000 से. ओके, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज़ द डिजिट इटसेल्फ. जो नंबर है
वही उसकी फेस वैल्यू होती है। मीन्स आपको जो नंबर दिखाई देता है वही उसकी फेस वैल्यू हो गई। 2 की फेस वैल्यू 2, वॉटेवर वो 1s पोजीशन पे है बट उसकी फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। 3 की एट द 10th पोजीशन है बट उसकी फेस वैल्यू 3 रहेगी, बट उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ये अभी 10th पोजीशन है, मतलब उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अगर हमें इस पोजीशन की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अंडरस्टैंड। अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये पोजीशन से हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट फेस वैल्यू इज़ वेरी सिंपल। जो नंबर दिखाई देता है वही उसका फेस होता है। अगर आपने आपके फ्रेंड को देखा है तो उसके फेस से ही उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं, वैसे ही नंबर है। जो नंबर दिखाई देता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। सो प्लेस वैल्यू निकालनी है अभी हमें 4832। इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इस नंबर की क्या निकालनी है, 1 मिनट। इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 2 विच पोजीशन 2 प्रेजेंट एट 1s पोजीशन, सो मल्टीप्लाई इट बाय 1। रिमेंबर, whenever we are calculating the place value, that time we have to multiply the number। हमें हमेशा उस पोजीशन से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2 into 1 2, because why we multiplied by 1, because 2 is present as the 1s position। 3 into 10, right, 3 into 10, why we multiplied 3 by 10, because 3 presents at the 10th position। 8 into 100 position। 4 into 1000 position। So answer is easy, 2 into 1 2, 3 into 10 3 1s are 3 as it is 0 in front of number 30। 8 into 1 8 and उसके सामने जितने ज़ीरो होंगे उतने ज़ीरो उस नंबर के सामने। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3, तो सिंपल ये नंबर लिख दो और उसके आगे 3 0 लिख दो, वो हो गया उसका आंसर। सो प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन एंड द फेस वैल्यू इज़ द नंबर itself। Let's we see the next example and remember main point, the place value and the face value of the digit in the number is same at the 1s position। जो नंबर 1s पोजीशन पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होती है। जो नंबर एट 1s पोजीशन पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होती है। ओके, लेट्स वी सी द अनदर एग्जाम्पल्स। See these numbers, place value and face value। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर। ये नंबर अंडरलाइन किया हुआ दिखाई दे रहा है ना, नंबर क्या है, पढ़ो, कैसे रीड करोगे उसे, नंबर्स एट द 1000 पोजीशन पे है कि नहीं, 5894, राइट। अभी हमें इस पोजीशन, इस नंबर की, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 4 into 1 4 एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 4। मीन्स देखो, जो नंबर एट 1s पोजीशन पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होती है। नाउ सेकेंड, 1736 अंडरलाइन नंबर एट द 100 पोजीशन, सो मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द 100। सो 7 into 100 is equal to 700 and the face value is 7। See this number is 2571। Find out the place value of underlined digit, which at which place this number is present, at the 1000 place, right? So multiply this digit with the thousands, its position, multiply it by the position। So 2 into 1000 is equal to 2000। 4138 4138 at the 1000 position, so 4 into 1000 4000। 9999 underline digit this 9 is at the 10th position, right? So multiply this digit by the 10। 9 into 10 is equal to 90, so place value is 90 and face value is 9। ठीक है, जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ना वही नंबर यहाँ पे लिखना है। 1 minute। देन नेक्स्ट
6045. नो एनी नंबर एट द 100 पोजिशन, राइट. इस ज़ीरो की आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है. सो मल्टीप्लाई दिस एट विच पोजिशन दिस ज़ीरो इज़ प्रेजेंट एट द 100 पोजिशन, बट नो एनी नंबर, सो मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो 0 इंटू 100 आंसर इज़ 0. इसकी फेस वैल्यू भी 0 है और उसकी प्लेस वैल्यू भी 0 है और फेस वैल्यू भी क्या है, 0 है. सो द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर एट द वंस प्लेस हैव द सेम. जो नंबर एट वंस पोजिशन पे होता है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होती है, राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. एक्सपांडेड मीन्स क्या है उसका, एक्सपांडेड मीन्स डोंकी वर्क, इन शॉर्ट हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं. और स्टैंडर्ड मीन्स स्मार्ट वर्क. एक्सपांडेड मतलब उसका बड़ा सा फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है उसका छोटा सा स्मॉल फॉर्म, राइट. जब आप मतलब आपके जो टॉयज़ होते हैं सारे रूम में फैल गए होते हैं, एक्सपांड, दे गेट एक्सपांड एवरीवेयर इन द रूम, दैट इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ योर टॉयज़. But when you collect the toys very properly and keep it in the cupboard, that time it's look nice, right? Means that is a standard form. Let's we see the standard expanded and the standard form of the number. What we see? The expanded and the standard form of the number. So number at the 5298, right? Expanded form कैसे लिखेंगे हम? Expanded form, right. 5000. 5, which position is the 5? At the 1000 position. So write it is as a 5000. यहाँ पे हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं. आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो. मल्टीप्लिकेशन का साइन कहाँ लिखना है और एडिशन का कहाँ लिखना है. इन प्लेस वैल्यू, whenever we are finding the place value, that time you have to multiply, right, with the position. But whenever you are writing the expanded form, that time you have to just add करो उनकी positions, ठीक है. in expanded form we have to add, and in finding out the place value we have to multiply. Okay, so expanded form at the 5 it is at the 1000 place, so write down the 5000. 2 at which position? 2 it is at the 100 position, so it is 200. 9 it is at the 10th position, so 90. 8 it is at the 1's position, so it is a 8. So standard form, just take the digit, first digit of the all numbers. सारे नंबर्स के फर्स्ट डिजिट ले लो. 5000 के 0 छोड़ दो, 5 ले लो. 200 को 0 छोड़ दो, 2 ले लो. 90 के 0 छोड़ दो, 9 ले लो, और 8 एज इट इज़. ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. जो स्मॉल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड, और जो बिग होता है वो होता है एक्सपांडेड फॉर्म. अभी हम चेक पॉइंट सॉल्व करेंगे. मैं 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के आपको घर पे सॉल्व करना है, राइट. नाउ दिस वी आर सॉल्विंग द चेक पॉइंट्स. आई सॉल्व द 2 एग्जाम्पल्स अमॉन्ग द चेक पॉइंट्स एंड द रिमेनिंग यू हैव टू सॉल्व. ओके, लेट्स सी. राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट. जो डिजिट को अंडरलाइन किया है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमें निकालनी है. तो 1346. अभी अंडरलाइन किसे किया है? 3 को. पहले क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर 1000, 100, 10s एंड 1s लिखना है. मैंने बताया था क्लास में, जब भी कोई नंबर दिखे उसको उसके हाउस में डाल देने का. whenever you are seeing the number, that time immediately give them houses. Like the 1, what is the house for 1? 1000. 3, what is the house for 3? 100. 4, what is the house for 4? 10s. And what is the house for 6? So write down 1000, 10s, 1000, 100, 10s and 1s. The 3 it is at the 100 position. So what we have to multiply 3 by the 100. So place value 3 into 100, 300, and the face value जो नंबर दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होता है. नाउ जो नंबर दिखाई दे उसके ऊपर इमीडिएट उसके क्या डालने हैं? हाउसेस. लाइक द 7, व्हाट इज़ द हाउस फॉर 7? 1000. व्हाट इज़ द हाउस फॉर 1? 100. व्हाट इज़ द हाउस फॉर 8? 10s. एंड दिस इज़ द 1s, राइट. व्हाट उसके हाउसेस में उनको डाल देने का है. सो आफ्टर दिस अंडरलाइन नंबर इट इज़ एट द 7.
7 it is at the 1000 place, right? 7 is at the 1000 place, so multiply 7 by the 1000, आंसर इज 7000, राइट. सो अभी आपको ये समझ में मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि 7 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करते बैठने का. नो, इट इज़ द डोंकी वर्क. जस्ट राइट डाउन द 7 into 1, you all know that 7, and write down the in front of 30. How many zeros in the 100? 20. Write down the 20 in front of the number. In 1000, 30. Write down the 30 in front of the number. So place value of this underlined number, it is the 7000, and the face value is number itself 7. Okay. So up to this point we learn. Tomorrow we will start our next point. Okay, tomorrow we will see about the predecessor and successor. Okay, so remaining examples of the checkpoint you solve in your notebook. But उससे पहले आपको ये पॉइंट लिखना है. मैं इसके फ़ोटो भेजती हूँ. I will send the photo of this page. First you write the basic information about the place value and face value, and then solve the checkpoint. Okay, if you have any problem you can message me. Thank you.